Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Student, we have completed the previous topic about clinical thermometer. Which topic we have studied, students? Clinical thermometer we have studied. But now we will start our topic laboratory thermometer. In your schools, you have went in the lab, okay, and there you will see this laboratory thermometer. Now student, there is difference between clinical thermometer and laboratory thermometer. First, when we will study this laboratory thermometer, then only we will tell the difference between clinical and laboratory. एक बार हम इसकी स्टडी कर लेते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर कौन सा होता है, फिर हम दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. नाउ स्टूडेंट, measure the temperature of other objects. For measuring the temperature of any substance present in the laboratory, we will not use clinical thermometer. We will use their laboratory thermometer. So which type of thermometer is that one? Laboratory thermometer. So student, you will see here this one. This is what beta? This is laboratory thermometer. In laboratory thermometer, reading start from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Laboratory thermometer, this is student laboratory thermometer. In this one, reading कहाँ से start होगी? That is from -10 to maximum. So minimum rating is -10 and maximum rating is 110. और ये किस यूनिट में मेज़र कर रहे हैं स्टूडेंट हम? दैट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. विच यूनिट? दैट इज़ इन सेल्सियस. But in clinical thermometer, what we have seen, that in one side Celsius and other side we have seen Fahrenheit unit. Hope it is clear now. Now I will tell you that this clinical thermometer reading I will show you here. See, this is the maximum reading. I hope you will clearly see. This is 110. This is here maximum reading, and here are the few other lines in between this one, which we can tell that 100 के बाद 101, 2, 3, 4, there are 10 other small lines which increases the temperature. If the reading, and in between here, इसके बीच में भी स्मॉल क्या है स्टूडेंट? वन कैपिलरी ट्यूब है. ऑल्सो एक कैपिलरी ट्यूब. इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर से क्या फ्लो कर रहा है स्टूडेंट? मरकरी. क्या यूज़ कर रहा है हम लोग? मरकरी. ओके, बट इन सम थर्मामीटर देर इज यूज्ड अल्कोहल ऑल्सो. अल्कोहल, what is that? Is red alcohol. In some places, in some this laboratory thermometer, red alcohol is used where the temperature is very low, and in some you can see that there is mercury used in the thermometer, but in some thermometer there is red alcohol is also used. रेड अल्कोहल भी हम यूज़ करते हैं. नाउ यू विल सी -10 से रीडिंग कहाँ पर आ जाएगी बेटा? यहाँ पे 100. ये 10 1 से स्टार्ट हो गई. 1 के बाद इसको 10 बिलो कर दो. ये दिख नहीं रहा यहाँ पे 10. ओके, सो 110 से यहाँ पे क्या, ये 110 है ये. ओके, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया? 0 में ये 10 प्लस कर दिया. कितना आ गया स्टूडेंट? -10. तो यहाँ से 0 से जो बिलो होगा वो क्या होगा? -10. सो -10 टू मैक्सिमम रीडिंग क्या थी? 110. मिनिमम रीडिंग क्या है बेटा? -10. मैक्सिमम 110. दिस थर्मामीटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास. दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास, एंड हेयर इज ऑल्सो ए bulb. You will see at the tip, you will see a small bulb. You will see a small bulb where we are using
Students, we have seen that here is also a same bulb in which what is filled beta? Mercury. Okay, and here this is a thermometer which is made up of glass, and this is, but this glass is thick, ये थोड़ा सा मोटा ग्लास होगा, and this one is thin. Okay, now one difference we will see in mercury thermometer, this clinical thermometer, you will see here is slightly kink. आप इसको क्या बोल सकते हो स्टूडेंट? is slightly kink, KINK, kink is present यहाँ पे, जिसको हम केमिस्ट वहाँ पे हमने देखा था कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको ऐसे। अब ये इसमें क्या है बेटा? ये स्टेट है। ओके, हेयर यू विल सी द स्टेट। इसके अंदर से ये मरकरी ऐसे रेस करेगी तो वी विल सी ए वेरी थिन लाइनिंग गोइंग फ्रॉम लोअर बॉटम टू अपर साइड। बॉटम से ये अपर की साइड ऐसे थिन लाइनिंग कैपिलरी ट्यूब के अंदर रेड कलर की मरकरी हम देख सकते हैं। ये सिल्वर कलर का बल्ब है। इसके अंदर से व्हेन वी विल टच व्हाट हैपन, मरकरी इज गेनिंग हीट, और व्हेन वी विल टच एनीथिंग, दिस बल्ब विल टच एनीथिंग, देन इट what it will do स्टूडेंट, ये हीट को क्या करेगी? गेन, हीट को गेन करेगी। देन इट एक्सपैंड, मरकरी क्या होगा स्टूडेंट? एक्सपैंड करेगी। हीट लेने के बाद एक्सपैंड करके ये क्या है? अपवर्ड की तरफ फ्लो होना स्टार्ट करेगी, और ये लेवल जहाँ तक इसका लेवल राइज होगा, ओके, जहाँ तक इसका लेवल स्टूडेंट राइज होता जाएगा, यू सी, जहाँ तक इसका सपोज ये आके यहाँ रुक गया, ओके, देन वी विल सी द रीडिंग हेयर, बट इट शुड बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस, आवर आई साइट। इस तरीके से हमारे आइस के बिल्कुल फ्रंट में होगा। वी विल टेक द रीडिंग लाइक दिस वन। इसको ऐसे तिरछा करके हम ऐसे रीडिंग नहीं देखेंगे। सो व्हाट वी हैव सीन हियर, दिस इज अ मर्करी, this is a thermometer which is in which what is filled? Mercury, mostly filled mercury. And this is a student laboratory thermometer. Which thermometer is this one? This is a laboratory thermometer. This is a laboratory thermometer. Now student, you will see here that in this thermometer I will tell you that there is a small, you can see here, इस थर्मामीटर के अंदर when we will see here, now we will see student here that this laboratory thermometer, in this one, if I want to take the reading of any substance, what I will do, I will dip this bulb, this bulb in the solution. ये आपने सोच लो, ये आई हैव टेकन दिस वाटर, ये क्या है बेटा? इसमें यहाँ पे वाटर फिल है। ओके, नाउ आई वांट टू नोट द टेम्परेचर। मुझे ये देखना है इसका वाटर का टेम्परेचर क्या है। सो व्हाट आई विल डू, आई so what I will do student here, that first I will take this thermometer, okay, and this thermometer is dipped in this beaker. This is a beaker. In this beaker what is filled here, यहाँ पे तक क्या filled है student? Water. Now I want to see the temperature of this water. Then what I will do, what I will do student, मैंने इसको क्या किया, इसको डिप कर दिया थर्मामीटर को। सी, दिस बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय द सोल्यूशन। इस बल्ब को सराउंडेड, इसके चारों तरफ क्या है बेटा? ये डिप होना चाहिए। इसको आप ऐसे नहीं रख सकते थर्मामीटर को कि ऊपर तक, कैसे नहीं रख सकते? ऐसे, यहाँ तक अगर मैं पानी ले लूँगी तो व्हाट हैपन, दिस बल्ब इज़ हाफ फिल्ड, दिस बल्ब इज़ हाफ सराउंडेड बाय द वाटर, हाफ ही सराउंडेड हुआ वाटर से। सो दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड। विच मेथड आई हैव टू टेक, मुझे कम से कम इसको इतना फिल करना चाहिए वाटर से, देन ओनली आई विल टेक द, एंड दिस बल्ब ऑल्सो शुड नॉट टच द बॉटम। ये बल्ब को बॉटम, इस बॉटम को भी टच नहीं करना है, ओके। अगर ये बल्ब बॉटम को टच करेगा बेटा
तो बॉटम किससे टच है, इसका कोई भी सब्सटेंस से टच होगा तो ये मरकरी वहाँ से भी हीट गेन कर लेगा. दिस मरकरी विल गेन हीट फ्रॉम देयर ऑल्सो. ओके, सो द करेक्ट मेथड इज it will not touch the bottom, it should be surrounded, this bulb is should be surrounded by the solution. जिसका हमें टेम्परेचर लेना है उसे क्या है, इसको पूरा तरह से उसको सराउंडेड होना चाहिए. नाउ इट शुड बी वर्टिकली, थर्मामीटर जो है ना वर्टिकली होना चाहिए. उसको वर्टिकली इस तरीके से हमने क्या रख रखा है, इसको वर्टिकली उल्टा हमने इसको थर्मामीटर को ऐसे नीचे की तरफ डिप करके रख दिया. नाउ व्हाट वी विल सी स्टूडेंट हियर, I will show you here that these are some precautions we have to take care. So what are the precautions students, while we have, so not tilted, this bulb cup, this should be kept upright, not tilted. इसको बिल्कुल upright straight होना चाहिए. इसको ऐसे इतनी तिरछा हम लोग रख सकते हैं, no, ऐसे टिल्टेड इसको रखना ही नहीं है बल्ब को. दिस थर्मामीटर शुड नॉट बी टिल्टेड, इट शुड बी केप्ट अपराइट, बिल्कुल अपराइट स्टेट होना चाहिए. बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंसेस. जिस सब्सटेंस के अंदर डिप कर रखा है उसे ऑल साइड से उसको क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, सराउंडेड. सब्सटेंस को हमने क्या है ऑल साइड से सराउंडेड होना चाहिए. सो टेम्परेचर क्या मेज़र करें हम उसका, एक्यूरेट. और बल्ब को सरफेस ऑफ द कंटेनर की सरफेस के साथ टच नहीं करना है. यू विल सी है स्टूडेंट. नाउ दिस इज थर्मामीटर, बॉटम पे भी टच नहीं है, इट इज़ नॉट टच द सरफेस ऑल्सो. सो एंड इट इज़ अपराइट स्ट्रेट, ऐसे टिल्टेड टेढ़ा तो हमने इसमें नहीं खड़ा कर रखा. सो इट शुड बी like this one, understood. So it should not be tilted, the bulb should not be tilted, it should be upright. Okay, now this is what we will say here student. So students, you have seen that this clinical thermometer and laboratory thermometer reading is also a different. And one more difference is that in this there is a kink. Kink मैं भी थोड़ा देर में आपको शो करती हूँ. First I will tell this one. So when we will take the reading, okay, so it should not be taken out. इसको हम बाहर निकाल के इसकी रीडिंग नहीं लेंगे, सेम यहीं पे इसके सामने आई साइट के सामने हम इसकी रीडिंग ले लेंगे. बिकॉज अगर हम इसको यहाँ से इसको निकाल के स्टूडेंट और इस थर्मामीटर को हमने यहाँ ऐसे रख लिया, व्हाट हैपन, ये इस तरीके से थर्मामीटर हो गया. ओके, ऐसे. अब इस बल्ब को हम बाहर निकालेंगे तो व्हाट हैपन स्टूडेंट, दिस इज हेयर द मर्करी ट्यूब. वंस अगेन थोड़ा ड्रॉ करती हूँ. यू विल से दिस इज ए बल्ब. ओके, ये क्या है स्टूडेंट, एक थर्मामीटर है और ये आगे क्या है बेटा, इसमें एक बल्ब है. यहाँ तक क्या फील्ड है, मरकरी. नाउ अगर मैं इसको बाहर निकाल के रीडिंग लेती हूँ तो व्हाट हैपन, क्या होगा, इसमें बीच ऐसे स्ट्रेट सेंटर में क्या है, ये मरकरी का लेवल बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा. ओके, बट यहाँ पे कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हमने किंक भी कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर में यू विल से, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा होगा, ये बल्ब हो गया और बल्ब के बाहर ऐसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक किंक शो करेगा. ओके, और देन इसका लेवल. सो अगर मैं इसको बाहर निकाल के देखूँगी तो व्हाट हैपन, दिस मर्करी लेवल फॉल्स डाउन फास्टली. ये जो मर्करी का जो लेवल है ना स्टूडेंट, ओके, जो रीडिंग में ये लेवल यहाँ तक वाटर के अंदर बढ़ गया था सपोज, सो ये फास्टली फॉल्स डाउन. सो वी विल नॉट टेक एक्यूरेट रीडिंग. सो वो क्या नहीं आएगी, एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ पाएगी बेटा. सो व्हाट विल वी हैव टू डू, एक्यूरेट रीडिंग क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें यहाँ पे एक किंक होती है, जिसको हम किंक, इसको आप किंक भी बोल सकते हो, KINK, और इसको आप कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोल सकते हो, जो मैंने पीछे भी बताई थी आपको. सो
किंक की वजह से क्या होगा, सडनली सपोज ये टेम्परेचर यहाँ तक ये मरकरी का लेवल राइज हो रखा है। ओके स्टूडेंट, अब इस किंक को आप इस थर्मामीटर को अगर बाहर भी निकाल लोगे तो व्हाट हैपन, इट विल नॉट सडनली फॉल डाउन। किंक की वजह से व्हाट हैपन, इट विल नॉट, द mercury level will not suddenly fall down, not fall down suddenly. So we will take the reading, but here there is not, this kink is not present in this laboratory thermometer. This is what student, laboratory thermometer, and this is what, which one, this is clinical. In clinical thermometer we will see this kink. So this kink allow not to fall down the temperature suddenly. इस किंक की वजह से सडनली टेम्परेचर फॉल्स डाउन नहीं होता, और इसको अगर हम बाहर निकाल के देखेंगे तो द टेम्परेचर विल फॉल डाउन एंड वी विल नॉट टेक द एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट रीडिंग हम नहीं ले सकते। ओके, सो वी विल ऑब्जर्व द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो हम हमारे सामने ही इसको रख के बेटा, बीकर को हम इसको इसके सामने झुक के और स्लाइटली वी विल टेक द रीडिंग ऑफ दिस वाटर। नाउ here is one question, that why we not take the clinical thermometer to measure high temperatures। हाई टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड, कहाँ हम यूज़ करते हैं? यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर। ये पूरा टेम्परेचर तुम लिख लेना। ओके, बॉडी टेम्परेचर, इट शोज़, लिख दो आप, इट शोज़ ओनली शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है बेटा, कि इसमें रीडिंग कितना शो कर रहे हैं, कि माइनस, इसकी रीडिंग कहाँ से शो हुई है? 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। केवल शॉर्ट रेंज की रीडिंग शो कर रहा है ये। अगर किसी का टेम्परेचर हाई हुआ तो हाउ वी विल टेक द रीडिंग? इट विल नॉट टेक। एंड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, हाई टेम्परेचर अगर हुआ किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, तो ये थर्मामीटर क्या हो जाएगा बेटा? डैमेज। ये थर्मामीटर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। अगर हम हाई किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हुआ, if any substance have high temperature, and we will use this clinical thermometer for checking the reading, then this clinical thermometer will damage, वो डैमेज हो जाएगा। और इट रीडिंग ओनली शॉर्ट रेंज की रीडिंग है, दैट इज़ फ्रॉम 35 टू कितना था स्टूडेंट? रीडिंग 42। शॉर्ट रेंज ऑफ रीडिंग है। अगर हम हाई टेम्परेचर के सब्सटेंसेस की रीडिंग लेंगे तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डैमेज। दैट्स वाई वी विल नॉट यूज़ दिस क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर टेकिंग द रीडिंग। okay, then you will see here in this activity. So I already told this one. So dip the thermometer in water, wait till the mercury thread becomes steadier and note the temperature। जब तक मरकरी का लेवल रुक ना जाए, ओके, तब तक क्या है? वी विल नॉट नोट द टेम्परेचर। हम इस टेम्परेचर को नोट डाउन नहीं करेंगे। वी विल नॉट नोट, ओके, नोट डाउन, हम नोट डाउन नहीं करेंगे जब तक इसका थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या है? बिल्कुल स्टेडी, मीन्स स्टॉप ना हो जाए, स्टॉप राइजिंग और फॉलिंग। जहाँ पे होगा टेम्परेचर, वी विल वेट फॉर 1 or 2 minutes। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। अब आप इसको वाटर से बाहर निकाल सकते हो, बट इफ़ यू विल टेक द थर्मामीटर रीडिंग हेयर, वाटर के अंदर भी आप इसकी थर्मामीटर की रीडिंग लोगे ना, दैट इज़ द बेस्ट। वो क्या होगा बेटा? बिल्कुल बेस्ट होगा। आप इसके सामने झुक के इसकी रीडिंग ले सकते हो। बट नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। आप बाहर निकाल के इसकी रीडिंग लोगे तो व्हाट हैपन?
हमने रीडिंग इसके अंदर ले ली, ओके, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। बट अगर मैं इसको बाहर लेके आऊँगी, व्हाट हैपन, व्हाट यू विल नोटिस, द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर, द लेवल, what you will see student, if I will take outside this thermometer, अगर इस थर्मामीटर को मैं बाहर निकालूंगी, what is happen, notice as soon as we take out the thermometer of the water, out of water, थर्मामीटर को वाटर से बाहर निकाल दिया, then the level of the mercury begin to fall, लेवल क्या हो जाएगा बेटा, मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा, फॉल्स डाउन, बिगिन टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज़ इन वाटर। तो हमें कब रीड करना चाहिए, व्हेन दिस थर्मामीटर इज़ इनसाइड द वाटर, जब ये वाटर के अंदर हो, देन ओनली वी विल टेक द रीडिंग। इफ़ वी विल टेक इट आउट, तो इसमें क्या नहीं है, व्हाट आई टोल्ड, किंक इज़ नॉट देयर। इफ़ किंक इज़ नॉट देयर, देन व्हाट हैपन, द थर्मामीटर, that the level of the mercury begins to fall। किंक क्या है, एक्यूरेट रीडिंग शो कर सकती है किंक की वजह से, बिकॉज इमीडिएटली इट विल नॉट स्टार्ट फॉलिंग, इमीडिएटली द रीडिंग दिस मर्करी विल नॉट, मर्करी है ना वो, इमीडिएटली फॉल्स नहीं होगी, नीचे नहीं आएगी इमीडिएटली, because of the presence of the kink, but here in this one kink is not present, so the mercury level start falling, begin to fall, and we are not able to measure the accurate reading, okay, so laboratory thermometer we have to use. Now what we will see here student, that this one I already told you, that mercury not fall or rise in a clinical thermometer when take out of the mouth, जब हम माउथ से बाहर निकाल देते हैं, then it will not fall or rise, ये क्यों नहीं होती है, because of near the bulb, what we will see, kink near the bulb, बल्ब के पास आप क्या देखोगे, वही मैंने बताया था ना, ऐसे किंक का निशान, जिसको हम कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। सो इसका रीज़न क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन क्या हेल्प करता है स्टूडेंट, दिस कॉन्स्ट्रिक्शन और किंक क्या हेल्प करता है, प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, अपने आप मर्करी का लेवल फॉल डाउन नहीं होगा। सी हियर, दिस इज़ ए किंक है, यहाँ बल्ब के पास यहाँ पे क्या होगा, एक किंक होगा। सो दिस किंक इज़ प्रेजेंट ओनली इन द क्लिनिकल थर्मामीटर। सो वी विल टेक आउट दिस थर्मामीटर फ्रॉम आवर माउथ। सो हम इसको माउथ से बाहर निकाल के वी विल टेक द रीडिंग, वी विल टेक द रीडिंग। सो मर्करी लेवल इट प्रिवेंट्स, रोकता है किसको, मर्करी लेवल को, फॉलिंग ऑन इट्स ओन, अपने आप मर्करी का लेवल बेटा लो नहीं होगा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो what are the main two differences in the laboratory thermometer and clinical thermometer? This is clinical, this is laboratory. One, in this clinical thermometer, what is shown here beta, it is kink is present, but इसमें कोई भी kink present नहीं होगी, straight capillary tube होगी। Second, इसकी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, और इसमें रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, इन दिस वन द रीडिंग स्टार्ट फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। थर्ड, ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, केवल बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए होता है, एंड इट इज़ यूज्ड इन द laboratory to measure temperature of substances or chemicals, you can say, okay, in the laboratory. And third, it is mostly used by the doctor. This clinical thermometer is used by the doctors to measure the temperature of the patient, and here it is mostly used by the scientists or the teachers to measure the temperature of any substance mostly। यो तो आप थर्मामीटर अपने पास घर में भी रख सकते हो स्टूडेंट्स, क्लिनिकल थर्मामीटर, ओके, लेबोरेटरी थर्मामीटर भी आप घर में रख सकते हो, टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ एनी अल्कोहल और एनी लिक्विड सब्सटेंस,
You can measure, but mostly generally what we will see, clinical thermometer we will see in the hospitals, and laboratory thermometer we will see in the laboratory or any place where scientists are doing experiments. So I hope it is clear now. Then what we will see here, students, this is a thermometer. Okay, now what is shown here, that now students, we have completed this laboratory thermometer and clinical thermometer. Okay, and now I want to announce the name of the students they are waiting also, who have given the correct response. Because why they are waiting, students? Because we know, students, those who are doing the hard work, only they are waiting. Okay, so we will check the name. I will announce here. This is the first, correct answer is, student, mercury. In thermometer, which substance is filled? Which metal is filled? That is mercury. First is, student, Keshav and Kirti. Keshav and Kirti. Keshav and Kirti. Okay. Second, Kritika. Second is Kritika. Third, student, Shivam. Fourth, Kartike. Fourth is Kartike. Fifth, Diksha. Fifth is, student, Diksha. Sixth, Bhavya. Sixth is Bhavya. Seventh, Chanchal. Seventh is Chanchal. Eighth, student, Garima. Garima. Ninth, Nikhil. Nikhil. 10th, student, Jatin. 11th, Pratap Singh. Pratap Singh. And 12th, Aryan. So congratulations, students, once again for your correct answer. You have given the correct response. Now I am asking one more question, same as I am asking in the previous videos also. So what is my question here? That what is the question? When we will see laboratory thermometer are marked laboratory thermometer, what I'm saying here, laboratory thermometer. Okay, laboratory thermometer are marked to measure temperature between so laboratory, this is the question, laboratory thermometer are marked to measure temperature between, option is, first option is +10 to -110, यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस और ऑल्सो. Okay, second, B is -10 to 110 degree Celsius. C is -10 to -100 degree Celsius. और D is, student, 10 to 110 degree Celsius. So first is +10 degree Celsius to -110 degree Celsius. B is -10 to 110 degree Celsius. C is -10 to -110 degree Celsius, and D is 10 to 110 degree Celsius. So I will announce the name of the student, those who have given me the correct answer of this question.
in my next videos. So thank you students for watching the videos.